Hello students. In this video you shall be learning about various methods of redemption of debentures of the company. First of all, before starting with the methods of redemption, let's discuss very briefly various sources of redemption. So the sources of redemption can be two. One is out of capital and second is out of profits. And when the debentures are redeemed out of profits, you have to create a debenture redemption reserve. We shall be discussing more about it when we'll come to this method. So if we talk about various methods of redemption of debenture, these are the various methods through which you can redeem your debenture. One is redemption in lump sum. Second is redemption by draw of lots. Third is redemption by conversion. Then is sinking fund method. Next is insurance policy method, and next is purchase in open market. Now, one by one, we shall be discussing the 6 methods. So, starting with the first one, methods of redemption of debenture. First is redemption in lump sum. For example, आपने 5 लाख के डिबेंचर इश्यू किए और आज से 5 साल के बाद आपने 5 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम कर देना है. Right? I repeat it. What is meant by redemption in lump sum? You have issued 5 lakh rupees of debentures and you are redeeming all 5 lakh after say 10 years. So ये सारे के सारे इकट्ठे redeem हो गए तो it becomes redemption in lump sum. अब ये जो redemption है again ये out of capital हो सकती है या out of profits हो सकती है. Entries same रहेंगी except few entries which will be additional entries if you go for redemption out of profits. अगर आप redemption out of capital करते हो तो आपकी सीधी ये एंट्री बनती है. अगर उसको पार पर रिडीम कर रहे हो तो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर टू बैंक. ऑलराइट. अगर आप उसको प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो तो डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक. जो सिंपल एंट्री आप रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल में करते हो प्रेफरेंस शेयर, सेम एंट्री. पहले आपने ड्यू किया डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक. लेकिन अगर यही आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो तो डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. Okay, so this is what is meant by redemption out of capital. There is no requirement of creation of any reserve, debenture redemption reserve here. However, if you go for redemption out of profits, if you go for redemption out of profits, you are utilizing the reserves or the profits of the company. So these are the entries which will be made. First entry is debentures to debenture holder or डिवेंचर होल्डर टू बैंक, जो आप करोगे अगर पार पर रिडीम कर रहे हो. अगर यही आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो तो एंट्री विल बी डिवेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक. सेम एंट्री जो हमने अभी पिछले में किया था आउट ऑफ कैपिटल में, सेम एंट्री अभी तक हमने 2 एंट्रीज की हैं. पहला ड्यू करने की, सेकंड पे करने की. थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो प्रॉफिट्स आपने यूज किए उन प्रॉफिट्स को के लिए एंट्री क्या पास करोगे? सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. माइंडेड स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू debenture redemption reserve. It is minimum 25%. Okay, but it does not mean the companies can only transfer into DRR just 25%. They can even go up to 100%. This all depends upon how much is available in the profits. अगर आपके पास profits में ज्यादा पैसा पड़ा है, you can transfer even 100%. That is why in many of the question you will see that there will be 100% transfer to DRR. Okay, so entry becomes surplus account debited to debenture redemption reserve. And when you are done with the debenture redemption, आपने debenture redemption कर ली है, खत्म हो गई है, फिर से ये debenture redemption किस में ट्रांसफर हो जाता है? जनरल रिजर्व में. I repeat the entries. When it is done out of profits, so the first entry you will do is making the debentures due. Debentures to debenture holders या debenture premium on debenture to debenture holder. दूसरा, आप उनको पे करोगे debenture holders to bank. तीसरा, जो आपने यूज किया उसके लिए बना दोगे DRR, तो entry will be surplus to DRR. And last is after the redemption आपकी entry हो जाएगी debenture redemption reserve to general reserve. Okay, so this we have done is first method, that is when the redemption has to be done in lump sum. Second method, redemption of debenture by annual drawings. इसकी एग्जाम्पल, इसको एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी जो आप यहां लिख रहे हो. द ओनली डिफरेंस विल बी इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज एंट्रीज आफ्टर 5 year once, you will be making these all entries every year. For example, a company issues 5 lakh
₹5 लाख डिबेंचर्स रीपेबल ₹1 एवरी ईयर। मतलब आपने 5 लाख के डिबेंचर्स आज इशू किए और आपने क्या करना है, हर साल 1 लाख के डिबेंचर रिडीम करने हैं। सो माइंडेड स्टूडेंट्स, इस मेथड में ये सारी एंट्रीज जो हमने ऊपर पढ़ी, ये सारी एंट्रीज होंगी प्रोवाइडेड एक साल में लास्ट 5 ईयर के बाद होने की बजाय दीज एंट्रीज विल बी मेड एवरी ईयर. Every end of the year you will be making. So instead of passing the entries once, you will be making the entries 5 times. Because 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, 1 लाख every year redeem करना है. So how many times you have to make the entries? This will be 5. Third is redemption by conversion. So redemption by conversion क्या है? Conversion means you are able to see there is an option. There are debentures which is called as convertible debenture. So what is meant by convertible debenture? Which have the option. It is not compulsory to get them, converted. They have got the option that they can get their debentures converted into equity. Okay, you will see in my upcoming videos that there will be, the chances that the debenture holders can even say कि we want to get our 30% of debenture holdings converted into equity and 70% you pay us in the cash. This is also possible. I repeat it. It is not necessary that the debenture holders can convert full of their debentures into equity. ऐसा नहीं है. They can even ask the company to convert their 30% part of the debenture holdings into equity and give us 70% cash. Okay, this is also allowed. Okay, so what are the entries? The entries will be, अब first of all आप क्या कर रहे हो, डिवेंचर्स तो रिडीम कर रहे हो, डिवेंचर्स तो खत्म हो रहे हैं, उसके बदले में शेयर्स बन रहे हैं. ठीक है, तो डिवेंचर को खत्म करना है तो डिवेंचर को डेबिट कर दिया. नंबर 1. नंबर 2, आपने अब क्या करना है, आपने अब इसकी बजाय क्या बना देना है, शेयर कैपिटल. तो 2 शेयर कैपिटल. अब अगर तो आपने ये जो नई शेयर कैपिटल है ये डिस्काउंट पर इशू करनी है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा. अगर ये न्यू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम पर करनी है तो यहां प्रीमियम हो जाएगा. हाउ अबाउट वी शैल बी कैलकुलेटिंग दी नंबर ऑफ शेयर्स हियर. फॉर एग्जाम्पल 1000 के डिवेंचर्स हैं और उसको इक्विटी कैपिटल में डिस्काउंट पर इशू करना है. आई रिपीट इट. फॉर एग्जाम्पल 1000 के डिवेंचर्स हैं और उसको इक्विटी कैपिटल में डिस्काउंट पर रिडीम करना है. तो हाउ अबाउट यू शैल बी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स. वी शैल बी डूइंग इट इन माई लेटर वीडियोज थ्रू सम क्वेश्चन. अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि डिवेंचर्स को डेबिट कर देना है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना है. अगर शेयर कैपिटल डिस्काउंट पर इशू हुई है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा. अगर शेयर कैपिटल प्रीमियम पर इशू हो रही है तो हम उसको प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ 3 मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन. First I have told you is redemption by lump sum. Second I have told you redemption by draw of lots. Third I have told you redemption by conversion. Okay. जो हमारे ये 3 मेथड्स हैं, आई शैल बी ड्वेलिंग इट अपॉन मोर इन माई लेटर वीडियोज. इनके लिए मैं एक फुल फ्लेज अलग वीडियोज में आपको समझाऊंगी व्हाट इज मेंट बाय सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, परचेज इन ओपन मार्केट. अभी आई हैव टोल्ड यू द सिंपल 3 मेथड्स व्हेन रिडेम्पशन इन लंप सम इज देयर, रिडेम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स इज देयर, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन इज देयर. However, now I shall be telling you something very brief about these methods. Let me tell you, ये जो 2 मेथड हैं, these 2 methods, these are called as redemption by provisions. What do we do? हम redeem करने के लिए, let's suppose we know it that after let's say 5 years we have to redeem our debentures. तो हमें 5 साल के बाद पैसा चाहिए होगा उनको पेमेंट करने के लिए. सो व्हाट डू वी डू? हम हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ कुछ पैसा रिजर्व करते रहते हैं एंड दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड रिजर्व. ओके. और उस सिंकिंग फंड को आगे इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि वहां से हमें इंटरेस्ट आए. ठीक है. सो दैट आफ्टर एंड ऑफ 5 years वी आर हैविंग दैट मनी, वी कैन सेल दोज इन्वेस्टमेंट्स एंड वी कैन हैव दैट मनी विद अस. ठीक है. दिस कॉल्ड एज सिंकिंग फंड मेथड. ऐसे ही इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वी कैन हैव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो. सो इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा दे के फिर 5 साल के बाद उस पॉलिसी को बेच के या रिडीम करा के हम उस पैसे को ले लेते हैं और उस पैसे से डिबेंचर्स को पे कर देते हैं. सो इन दोनों ही मेथड से, these 2 methods, 4th and 5th, इन दोनों ही मेथड से what we are doing, we are creating a provision. हम अपने पास एक प्रोविजन बना रहे हैं, उस प्रोविजन के पैसे को आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को 5 साल के बाद बेच के we are paying our debentures.
ठीक है. Then is purchase in open market. What do we do? Like any other buyer in the market, because debentures एक ऐसी security है which is very much available in the market. You can purchase it just like any other commodity or shares. So आप market में just like any other retail investor आप जाके market में वो share खरीद रहे हो, because you are a company and company is an artificial person. Artificial person can transact in its own name. So company अपने ही debentures को क्या कर रही है? Purchase कर रही है. ठीक है. तो अगर कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज कर रही है तो ये परचेज करने के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. पहला होता है इमीडिएट कैंसिलेशन. आज परचेज किए उसको उसी वक्त क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, मींस रिडीम कर दिए. ठीक है. तो एक तो हो गया कंपनी ने मार्केट में से डिवेंचर खरीदे और साथ ही साथ उनको क्या कर दिया? रिडीम कर दिया. दूसरा होता है एज इन्वेस्टमेंट. कंपनी ने क्या किया? मार्केट से डिवेंचर्स खरीदे और उनको अपने पास रखा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और लेट्स से आफ्टर 2 years 3 years 4 years उनको रिडीम कर दिया. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाले इमीडिएट कैंसिल हो जाते हैं, आज मार्केट से खरीदे और साथ के साथ कैंसल्ड रिडीम्ड, और ये वाले आज खरीदे रखे थोड़ा टाइम पीरियड एंड देन यू हैव रिडीम्ड. ठीक है. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी टॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट फ्यू क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दीज 3 and then we shall be moving this. Thank you so much.